હું આપ સહુને વીર કુનકુન કહાન જૈન યુથ એસોસિએશનનો પરિચય કરાવું છું. વીર કુનકુન કહાન જૈન યુથ એસોસિએશન કેન્યાના સ્થાપક છે કોમલ શાહ, જેની શરૂઆત એપ્રિલ 2020માં મહાવીર જન્મ કલ્યાણકના શુભ દિવસે થઈ હતી. માત્ર 5 વર્ષમાં વીર કુનકુન કહાન જૈન યુથ એસોસિએશન આફ્રિકાની સૌથી મોટી દિગંબર જૈન સંસ્થા બની છે. તેમની યુટ્યુબ ચેનલ પણ આફ્રિકામાં જૈન ચેનલોમાં નંબર 1ના સ્થાન પર છે. યુવાનો અને બાળકોને શીખવા અને આગામી પેઢીને ધર્મમાં આગળ વધવા માટે કોમલ પ્રેરણા પૂરી પાડે છે. પૂજ્ય ગુરુદેવ શ્રી કાનજી સ્વામીના માર્ગદર્શન હેઠળ કોમલ દ્વારા 2 ચિલ્ડ્રન્સ ક્લાસીસ એન્ડ 2 અડલ્ટ ક્લાસીસ ઓન વીકલી બેઝિસ ચલાવવામાં આવે છે. વીર કુનકુન કહાન જૈન યુથ એસોસિએશન કેન્યાના ક્લાસીસને USA, ઇન્ડિયા એન્ડ UAEના બાળકો તેમજ યુવાનો અટેન્ડ કરી જ્ઞાનમાં વૃદ્ધિ કરી રહ્યા છે. કોમલ દ્વારા 12થી વધુ દેશોના જૈન યુવાનો કે જેઓને શ્રી કુંદકુંદ આચાર્ય દ્વારા લખાયેલા શાસ્ત્રોના માર્ગદર્શન હેઠળ આપણા જૈન દર્શન વિશે જાણવા માટે દર થોડા મહિને યોજાતા ગ્લોબલ યુથ કન્વેન્શનમાં ઇન્વોલ્વ થયા છે. આ રીતે 5 વર્ષના ટૂંકા ગાળામાં વીર કુનકુન કહાન જૈન યુથ એસોસિએશને ખૂબ સારી પ્રગતિ કરી છે અને હજુ વધુ પ્રગતિ માટે આપ સૌનો ડોનેશન દ્વારા સાથ ખૂબ જ જરૂરી છે. આજની નાટિકાનું અનુસંધાન આદિ પુરાણમાંથી લેવામાં આવ્યું છે, જે આચાર્ય જીનસેને લખ્યું છે. ભગવાન આદિનાથના જીવન ચરિત્રમાંથી શીખવા મળે છે કે આત્મિક સુખની સામે અઢળક સંપત્તિ અને વૈભવ તુચ્છ છે. સંસારી જીવ બાહ્ય પદાર્થમાં સુખ માનીને જન્મ મરણના ચક્કરમાં ફસાય છે, પણ તીર્થંકર ભગવંતોનો સંદેશ છે કે સુખ બાહ્ય વસ્તુમાં નથી પણ સ્વ આત્મામાં જ છે. તો ચાલો કરીએ ભગવાન ઋષભદેવના ગર્ભ કલ્યાણકથી લઈને મોક્ષ કલ્યાણક સુધીની ભાવયાત્રા. That was such a lovely presentation in Gujarati by Pinner. It is important to learn our mother tongue in order to keep our Jain literature in its pure form for the next generations to come. Veer Kunkun Kahan Jain Youth Association imparts the Digambar Jain philosophy as per the teachings of Pujya Gurudev Sri Kanji Swami. Online Jain classes are run for both children and adults, which are taught by Komal Shah in both English and Gujarati. We encourage you to join these classes from the comfort of your home. We are humbled that our chief guest, Mrs. Sushila Ben Shah, has graciously accepted our invitation. Jai Jinendra. Ladies and gentlemen, I feel very proud to know that Veer Kunkun Kahan Jain Youth Association has grown in leaps and bounds and is currently the leading Digambar Jain Institute in Africa, both in terms of number and popularity, which we all have heard just now
Congratulations. Well done. Khub khub anumodna and keep it up, the good work. As they celebrate 45 years of Sri Mahavir Digambar Jain Temple this year, I wholeheartedly congratulate the entire team, which is led by Komalben. Truly, these youth and children are our present and future of our Jain society. Today, I am very much eager to watch a delightful dance recital on the life of Tirthankar Rishabhdev, Journey to Supreme Happiness. I congratulate all the participants for sparing their valuable time and very khub anumodna. Now especially the producer, director, compare of recital of this program is none other than Komalben. કોમલબેને આ જૈન ધર્મના મહાન પુરુષોનો કળાથી, આવડતથી, મહેનતથી અને સંગીતમયથી આજે આપણી સમક્ષ પ્રદર્શિત કરી રહ્યા છે. It is a great pleasure to learn that all their events are done free of charge to create awareness of Jain philosophy as per our Shastra. Jai Mahavir and Jai Jinendra. Jai our Rishabh Dada, which we are going to see the life story of our Rishabh Dada. Ladies and gentlemen, it is important to acknowledge that this show would have not been possible without our sponsors. A round of applause for all our sponsors who have shown the volition to preserve our Jain Dharma for the generations to come. Our team comprises of about 90 volunteers who have been dedicatedly working under the leadership of Komal Shah. We would like to thank all the volunteers who have contributed towards this massive project. આજની નૃત્ય નાટિકા આપણા પહેલા તીર્થંકર શ્રી ઋષભદેવ ભગવાનના જીવન ચારિત્ર પર આધારિત છે.
24 તીર્થંકરના જીવનમાં 5 કલ્યાણક ખૂબ જ મહત્વના હોવાથી ઉજવવામાં આવે છે. તે 5 કલ્યાણક છે. પહેલો ગર્ભ કલ્યાણક, કોન્સેપ્શન. બીજો જન્મ કલ્યાણક, બર્થ. ત્રીજો તપ કલ્યાણક, રિનાઉન્સિએશન ઓર મોંકહુડ. ચોથો જ્ઞાન કલ્યાણક, અટેનમેન્ટ ઓફ ઇન્ફિનિટ નોલેજ. ને પાંચમો મોક્ષ કલ્યાણક, લિબરેશન ફ્રોમ ધ સાયકલ ઓફ બર્થ એન્ડ ડેથ. તો ચાલો આપણે સાથે મળીને આ 5 કલ્યાણકનો મંગલ ઉત્સવ સેલિબ્રેટ કરીએ. મંગળોત્સવ આવ્યો, હવિજન મંગળોત્સવ આવ્યો રે. 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 આવો સાધર્મી આવો, આ મંગળ અવસરમાં આવો. આવો સાધર્મી આવો, આ મંગળ અવસરમાં આવો. આધ્યાત્મના સાગરમાં સૌ સાથે ડૂબકી લગાવો. જીનભર પ્રભુજી શબ્દ વધે પડઘાયો રે. મંગળોત્સવ આવ્યો, હરિજન મંગળોત્સવ આવ્યો રે. મંગળોત્સવ આવ્યો, હરિજન મંગળોત્સવ આવ્યો રે. આજ મહોત્સવ પંચ કલ્યાણક ભાવિક આવ્યા આવ્યા શ્રાવક. આજ મહોત્સવ પંચ કલ્યાણક ભાવિક આવ્યા આવ્યા શ્રાવક. પ્રભુ ચૈતન્યની સ્થાપના કેરો. આજ મહોત્સવ આવ્યો, પાવરથી પ્રભુ બનવાનો અવસર આવ્યો રે. મંગળોત્સવ આવ્યો, હરિજન મંગળોત્સવ આવ્યો રે. મંગળોત્સવ આવ્યો, હરિજન મંગળોત્સવ આવ્યો રે. જીન દર્શનથી નિજ દર્શન છે, ભાવ અહીં સૌના પાવન છે. જીન દર્શનથી નિજ દર્શન છે, ભાવ અહીં સૌના પાવન છે. શાંતિ સુધા રત્નાકર પ્રભુવર કરુણા મૂર્તિ ગુરુવર તત્વ જ્ઞાનની ગૌરવ ગાથા ગાયો રે. મંગળોત્સવ આવ્યો, હરિજન મંગળોત્સવ આવ્યો રે. મંગળોત્સવ આવ્યો, હરિજન મંગળોત્સવ આવ્યો રે. तीर्थंकर भगवान की लाइफ में 5 स्पेशल सेलिब्रेशंस होते हैं जिनको 5 कल्याणक भी कहते हैं. हम सब आपको टाइम ट्रैवल करवा के इन सब 5 स्पेशल सेलिब्रेशंस का वॉक थ्रू देने वाले हैं. चलोगे हमारे साथ?
तो आओ सबसे पहले आपको बताते हैं गर्भ कल्याणक के बारे में। ये सेलिब्रेशन तीर्थंकर भगवान का जन्म लेने से पहले मतलब बॉर्न होने से पहले शुरू हो जाते हैं। चलो आपको हम आदिनाथ भगवान के गर्भ कल्याणक सेलिब्रेशंस के बारे में बताएंगे। सभी तीर्थंकर भगवानों की सेलिब्रेशंस ऑलमोस्ट एक जैसी ही होती हैं। तो तीर्थंकर बनने से पहले भगवान की सोल, उनका जीव, सर्वार्थ सिद्धि में अहमेंद्र नाम का देव था। जैसे जैसे उनकी देव वाली एज कम होती गई, पूरे यूनिवर्स में सब लोग बहुत एक्साइटेड होने लगे। क्यों? क्योंकि बस भगवान अपनी देव आयु पूरी करके 6 मंथ्स के बाद तीर्थंकर बनकर बॉर्न होने वाले हैं। तो स्वर्ग में जो देवों का किंग होता है ना, इंद्र, उनकी परमिशन से उनके कुबेर नाम के देव ने बहुत सुंदर सिटी बनाई जिसका नाम था अयोध्या। कुबेर देव के पास तो बहुत सारा ट्रेजर होता है। तो that city named Ayodhya was 12 yojan long and 9 yojan wide. Yojan is a measure just like we measure dimensions in kilometers. एक योजन जो होता है वो 12 किलोमीटर के बराबर होता है। तो जो सिटी थी ना वो 144 किलोमीटर्स लॉन्ग थी और 108 किलोमीटर्स वाइड थी। उस सिटी के चारों तरफ there was a boundary of clean and pure water. बड़े ही भव्य जिन मंदिर बने हुए थे जिनमें रत्नों की प्रेशियस स्टोन्स की प्रतिमाएं विराजित थीं। वहाँ बहुत सारे क्लीन वाटर पॉन्ड्स भी थे जिनमें सुंदर सुंदर कमल के फूल। उन्हीं गार्डन्स में there were piles and piles of diamonds and other precious stones and gems. वहाँ किंग का पैलेस बना हुआ था जिसका शिखर मतलब टॉप वॉज स्काई हाई। एंड हाँ, उस सिटी में बहुत अच्छे स्कूल्स और कॉलेजेस भी बने हुए थे। वो सिटी कुबेर देव ने इतनी सुंदर बनाई कि उसके सामने तो इंद्रदेव की सिटी भी बहुत छोटी लगती थी। और यही नहीं, भगवान के बर्थ के 15 मंथ्स पहले से ही उस सिटी में 3 टाइम्स एक दिन में एक स्पेशल रेन होती थी। बताओ किस चीज़ की रेन? अरे वहाँ तो रत्नों की बारिश होती थी, मतलब प्रेशियस जेम्स, प्रेशियस डायमंड्स एंड अदर प्रेशियस स्टोन्स की बारिश। तीर्थंकर आदिनाथ की जो मॉम बनने वाली थी ना, क्वीन मरु देवी, वो एक दिन अपने पैलेस में एक सुंदर से बेड पे सोई थी कि रात खत्म होते होते उन्होंने क्या देखा? हम नींद में ड्रीम्स देखते हैं ना, तो रानी ने भी स्पेशल ड्रीम्स देखे। अच्छा बताओ, तीर्थंकर की माता कितने स्पेशल ड्रीम्स देखती है? हाँ, तीर्थंकर की माता 16 स्पेशल ड्रीम्स देखती है। 16 स्वप्न। स्वप्न मतलब ड्रीम्स। तो माता मरु देवी ने देखा ऐरावत हाथी, एक वाइट बैल, एक रोरिंग लायन, लक्ष्मी देवी, 2 मालाएं, चंद्रमंडल, सूर्यबिंब, सुवर्ण मतलब गोल्ड के 2 कलश, फिशेस प्लेइंग इन अ पॉन्ड, तालाब में खेलती 2 मछलियां, प्योर क्लीन वाटर वाला सरोवर मतलब क्लीन वाटर बॉडी, लहराता हुआ समुद्र ओशन, रत्न जड़ित सिंहासन मतलब किंग का स्पेशल चेयर मेड विद प्रेशियस स्टोन्स, देवों का विमान, एक ऐसा एरोप्लेन जिस पे देवलोग ट्रैवल करते हैं, नागेंद्र भवन मतलब नागेंद्र के रहने की जगह, रत्न राशि मतलब जेम्स, डायमंड्स के पाइल्स, अग्नि मतलब स्मोकलेस फायर। और जैसे ही ये 16 ड्रीम्स कंप्लीट हुए, रानी ने नींद में देखा कि उनके मुंह में एक वाइट कलर का बैल मतलब ऑक्स एंटर कर रहा है। बस जैसे ही ये सपने देखे, इतने में ही रात पूरी हो गई, अर्ली मॉर्निंग हो गई और राज मंदिर से मतलब पैलेस के जो मंदिर थे ना, उनमें से मंगल बाजों की, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की और प्रेयर्स की आवाज़ें आने लगी। रानी की नींद खुल गई।
वो पांचों परमेष्ठी का स्मरण करते हुए बेड से उठी और अपने स्पेशल ड्रीम्स के बारे में सोचने लगी कि उन्होंने जो देखा कुछ टाइम पहले उनका क्या मतलब था। तो उनका मतलब पूछने वो अपने हस्बैंड, जो कि उस नगरी के किंग थे, राजा नाभिराज, उनके पास गईं और अपने स्पेशल ड्रीम्स के बारे में बताया। किंग नाभिराज को स्पेशल नॉलेज थी जिसे कहते हैं अवधि ज्ञान। ये एक सुपर नॉलेज होती है जिससे पास्ट, फ्यूचर और दूर में रखी चीजों के बारे में पता चल जाता है। राजा नाभिराज ने अपने अवधि ज्ञान से बताया कि इन ड्रीम्स का मतलब है कि उनके घर में एक बहुत ही पावरफुल, काइंड, ब्रेव, कंपैशनेट सोल का जन्म होने वाला है, मतलब बर्थ होने वाला है। और वो जीव, वो सोल स्वर्ग से चढ़कर माता मरुदेवी के गर्भ में आ चुका है। यहाँ अयोध्या में राजा ड्रीम्स का मीनिंग बता रहे थे क्वीन मरुदेवी को, और वहाँ स्वर्ग में इंद्र का सिंहासन, मतलब उनका थ्रोन जिस पे किंग बैठा करते हैं, वो शेक हुआ। इंद्र को क्यूरियोसिटी हुई कि ये मेरा सिंहासन क्यों कंपायमान हुआ, तो उन्होंने भी अपने अवधि ज्ञान से, सुपर नॉलेज से जान लिया कि भगवान आदिनाथ का जीव माँ के गर्भ में आ चुका है। ये जानकर सब देव देवियां बहुत आनंदित हुए, बहुत हैप्पी हुए और अयोध्या आए। वहां आकर उन्होंने बहुत उत्सव किए, सेलिब्रेशंस की और सुंदर सुंदर क्लोथ्स और ज्वेलरी राजा और रानी को भी दी। किंग नाभिराज और क्वीन मरुदेवी की बहुत रिस्पेक्ट की, आदर सत्कार किया। और जैसी गर्भ के दौरान स्पेशल जेमस्टोन्स और डायमंड्स की बारिश होती रहती थी ना अयोध्या में, वो अब कंटिन्यूड रहने लगी। इंद्रदेव ने इमीडिएटली बहुत सारी स्वर्ग की देवियों को माता मरुदेवी की सेवा के लिए, उनकी हेल्प के लिए अयोध्या भेज दिया। वो देवियां थी दिक्कुमारियां, श्री, कीर्ति, धृति, लक्ष्मी, बुद्धि एक्सेट्रा। अब तीर्थंकर की सोल माता मरुदेवी के गर्भ में आ चुकी थी, लेकिन अभी तीर्थंकर का जन्म नहीं हुआ था। तो ये सब देवियां मदर की, माता मरुदेवी की बहुत सेवा करती थी। They used to make sure that the would-be mother is safe, happy and comfortable. कोई देवी तो माता की ऑयल मसाज करती थी, कोई देवी उनके बाल बनाती थी, कोई उनकी बॉडी पे सुगंधित अच्छी अच्छी खुशबू वाले लेप, पेस्ट लगाती थी, कोई देवी माता के लिए बहुत हेल्दी और टेस्टी भोजन बनाती थी, कोई देवी तो तलवार मतलब स्वॉर्ड लेकर सिक्योरिटी गार्ड करती थी, वहाँ की रक्षा करती थी, कोई माता के आंगन को मतलब कोर्टयार्ड को सफाई करती थी, और कोई देवी सुंदर सुंदर नाच नाच कर माता का दिल बहलाती थी, उनको हैप्पी करती थी। माता मरुदेवी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई पूरे गर्भ के दौरान, उनकी बॉडी भी बिल्कुल चेंज नहीं हुई। शी वॉज एज ब्यूटिफुल एज बिफोर। और जैसे ही गर्भ का समय पूरा हुआ तो माता मरुदेवी ने किसको जन्म दिया? Who was born after all these celebrations? A little baby was born who was going to become Tirthankar Adinath. Since that baby was going to be a Tirthankar, who is the most powerful, the most pure soul in this universe, इसीलिए तो तीर्थंकर भगवान के गर्भ में आते ही इतनी सारी सेलिब्रेशंस होने लगी थी पहले से ही। देखो शुभ रहना आए, तारों ने दीप जलाए, जब माँ निद्रा में जाए, चंदा भी गीत सुनाए। मन हुआ अचंभित आज, बज उठे साज, चित्त हर्षाए रे।
शुभ स्वप्न आए रे, माता मन मन मुस्काए रे, मंगल शुभ स्वप्न आए रे, माता मन मन मुस्काए रे। विशाल ऐरावत हाथी देखा, जो गरजे मानो मेघ छाए रे, देखा एक श्वेत रंगी बैल भी देखा, कंधे हो मानो ढोल साजे रे, मन हुआ अचंभित आज बज उठे साज चित्त हर्षाए रे, मंगल शुभ स्वप्न आए रे, माता मन मन मुस्काए रे, मंगल शुभ स्वप्न आए रे, माता मन मन मुस्काए रे। श्वेत रंगधारी कंधों पे लाली खूब साजे रे, शुभ लक्ष्मी आई पद्मासन पर ठाई, हर देव गज कलशे बरसाए रे, मन हुआ अचंभित आज बज उठे साज चित्त हर्षाए रे, मंगल शुभ स्वप्न आए रे, माता मन मन मुस्काए रे, मंगल शुभ स्वप्न आए रे, माता मन मन मुस्काए रे। पुष्प सुरभित मालाएं देखी, जिन पर भंवरों ने गीत गाए रे, देखी वो चंद्रमा की चांदनी देखी, मोती समान माता मुस्काए रे, मन हुआ अचंभित आज बज उठे साज चित्त हर्षाए रे, मंगल शुभ स्वप्न आए रे, माता मन मन मुस्काए रे, मंगल शुभ स्वप्न आए रे, माता मन मन मुस्काए रे। दिनकर उज्ज्वल रवि तमहर, दीपावली ही द्वार लाए रे, स्वर्णिम कलश आए झिलमिल चमक लाए, जगमग जग का वैभव शर्माए रे, मन हुआ अचंभित आज बज उठे साज चित्त हर्षाए रे, मंगल शुभ स्वप्न आए रे, माता मन मन मुस्काए रे, मंगल शुभ स्वप्न आए रे, माता मन मन मुस्काए रे। दो
सरोवर में क्रीड़ा करती, मानो माता के नैन लागे रे। देखा केसर पद्मों से युक्त सरोवर भी शुभ ऋतुओं का श्रृंगार लागे रे। मन हुआ अचंभित आज, बजे उठे साज, चित्त हर्षाए रे। मंगल शुभ स्वप्न आए रे, माता मन मन मुस्काए रे। मंगल शुभ स्वप्न आए रे, माता मन मन मुस्काए रे। विस्मित हुआ मन था, देखा समंदर था, चलकर उछलते खिलखिलाए रे। उत्तुंग सिंहासन मणिया करे वासन, मेरू शिखर सा जगमगाए रे। मन हुआ अचंभित आज, बजे उठे साज, चित्त हर्षाए रे। मंगल शुभ स्वप्न आए रे, माता मन मन मुस्काए रे। मंगल शुभ स्वप्न आए रे, माता मन मन मुस्काए रे। देखा एक देवयान रत्नों से मंडित, मानो देवों की भेंट लागे रे। देखा भूगर्भ से नागेंद्र गृह बनते, पाई त्रिभुवन की हर निधि मन में। मन हुआ अचंभित आज, बजे उठे साज, चित्त हर्षाए रे। मंगल शुभ स्वप्न आए रे, माता मन मन मुस्काए रे। मंगल शुभ स्वप्न आए रे, माता मन मन मुस्काए रे। चमके रतन राशि, दमके दर्द नाशी, पृथ्वी क्यों प्रमुदित हो मुस्काए रे। अग्नि अति पावन, निर्धूम मन भावन, धरतियों सारी जगमगाए रे। मन हुआ अचंभित आज, बजे उठे साज, चित्त हर्षाए रे। मंगल शुभ स्वप्न आए रे, माता मन मन मुस्काए रे। मंगल शुभ स्वप्न आए रे, माता मन मन मुस्काए रे। अंतिम बेला, अंत समय में एक बैल शुभ सुख कर मुख के द्वारे आया, भीतर बजे धुंधुली प्रद कर। करवट पलटे स्वप्न को देखे, मन प्रमुदित मुख सुंदर, लगता जैसे प्रकट हो गए सारे चित्र मनोहर। तब भोर की
पहली किरण माँ को जगाए रे, मंगल शुभ स्वप्न आए रे, माता मन मन मुस्काए रे, मंगल शुभ स्वप्न आए रे, माता मन मन मुस्काए रे। तीर्थंकर भगवान का जीव स्वर्ग से माता के गर्भ में आता है तो कैसे सेलिब्रेशंस होते हैं, है ना? तो गर्भ कल्याणक के बाद होती हैं ग्रैंड सेलिब्रेशंस। किस लिए? बताओ बताओ। जन्म कल्याणक की सेलिब्रेशंस। जन्म मतलब बर्थ और कल्याणक मीन्स कल्याण करने वाला। गर्भ कल्याणक के 9 मंथ्स के बाद बेबी का जन्म होता है तो बहुत सारे देव स्वर्ग से धरती पर आकर भगवान के बॉर्न होने की खुशियां मनाते हैं। इन सभी स्पेशल ग्रैंड सेलिब्रेशंस को बोलते हैं जन्म कल्याणक। वो बेबी बर्थ से ही 3 सुपर नॉलेजेस को लेकर बॉर्न हुआ था। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान। वो तीर्थंकर बेबी का ऑरा इतना ब्राइट होता है कि सब जगह की डार्कनेस चली जाती है। प्रसूति गृह मतलब कि भगवान की जो बर्थ प्लेस होती है ना, वहां पर देवियां जगह जगह सुंदर दिए लगाती हैं। तीर्थंकर भगवान के जन्म लेते ही पूरे यूनिवर्स में हैप्पीनेस छा जाती है। तीर्थंकर बालक इतना पुण्यवान होता है कि उनके बर्थ होते ही एक मोमेंट के लिए तो नरक में भी नारकी लोग सुखी हो जाते हैं। सब जगह अच्छा अच्छा होने लगता है। सभी दिशाएं, स्काई एकदम क्लियर हो जाता है, कोई डार्क क्लाउड्स भी नहीं रहते। तो अब भगवान के जन्म की सेलिब्रेशंस के लिए स्वर्ग के किंग, जिनका नाम होता है सौधर्म इंद्र, और उनकी रानी जिनका नाम होता है शची इंद्राणी, एक बहुत ब्यूटीफुल और ह्यूज वाइट ऐरावत हाथी पर बैठकर बेबी को देखने और उनकी सेलिब्रेशंस के लिए आते हैं। और इंद्र इंद्राणी के साथ पूरे स्वर्गों के देव और देवियां भी नाचते गाते हुए जाते हैं। अयोध्या पहुंचने के बाद सभी देव बेबी के पैलेस की 3 प्रदक्षिणा देते हैं। हम भी तो मंदिर जी में जाकर भगवान के दर्शन करते हुए प्रदक्षिणा देते हैं ना। हाँ, तो शची इंद्राणी माँ के प्रसूति गृह में जाती है, मतलब बर्थ प्लेस में जाती है, और बहुत ही भक्ति भाव से तीर्थंकर बेबी को प्रणाम करती है। और वो माया से सेम वैसे ही एक और बेबी को माता के पास सुलाकर रियल तीर्थंकर बेबी को वहां से लेकर आ जाती हैं। तो वो किस लिए लाती हैं बेबी को बाहर? भगवान के जन्म अभिषेक के लिए। और बाहर सभी देव देवियां ईगरली बेबी को देखने का वेट कर रहे होते हैं। भगवान के बाहर आते ही जय हो से पूरा पैलेस गूंज उठता है। वो बेबी इतना सुंदर होता है कि सौधर्म इंद्र अपनी 2 आंखों से देखने पर भी सेटिस्फाई नहीं होता। भगवान को और अच्छे से जी भर कर देखने के लिए सौधर्म इंद्र अपनी 1000 आईज बना लेते हैं। तो अब पता है शची इंद्राणी, सौधर्म इंद्र और सभी देव देवियां ये सेलिब्रेशन कैसे करते हैं? वो सब तीर्थंकर बेबी को अपने साथ ऐरावत नाम के एलिफेंट के ऊपर बिठाकर कहाँ लेकर जाते हैं? सुमेरु पर्वत पर। सुमेरु नाम का एक बहुत बड़ा माउंटेन होता है जिसके टॉप पीक पर होता है पांडुक वन।
हाँ, तो बेबी को जन्माभिषेक के लिए वहीं ले जाया जाता है। एक देव तो बालक तीर्थंकर की रिस्पेक्ट में उनके ऊपर वाइट छत्र लगाते हैं और दो देव दोनों साइड्स पर चंवर ढुराते रहते हैं। हाँ, तो सुमेरु पर्वत की हाईएस्ट पीक पे पांडुक वन होता है ना, उसी की ईस्ट डायरेक्शन में भगवान के जन्म कल्याणक की सेलिब्रेशंस होती हैं। दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। यहाँ पर बहुत ही सुंदर स्फटिक मणि मतलब एक प्रेशियस स्टोन से बनी हुई पांडुक शिला होती है। ये शिला, ये रॉक इतनी ब्राइट और ब्यूटीफुल होती है, बिल्कुल वाइट मून की तरह। इसी शिला के ऊपर भगवान का जन्माभिषेक होता है। भगवान के अभिषेक के लिए बहुत दूर तक बहुत लंबी लाइन लग जाती है देवों की। एवरी देव वांट्स टू पार्टिसिपेट इन द जन्म कल्याणक। तो ये देवों की लाइन गोज ऑल द वे फ्रॉम पांडुक शिला टू द प्योर ओशन। दिस स्पेशल ओशन इज नेम्ड क्षीर सागर। भगवान के अभिषेक के लिए कलशों में मतलब पॉट्स में जल लाया जाता है। कहाँ से? क्षीर सागर से। अच्छा बताओ, भगवान का अभिषेक कितने कलशों से होता है? हाउ मेनी पॉट्स आर यूज्ड टू डू जन्माभिषेक? हाँ, भगवान का अभिषेक 1008 मतलब 1001 कलशों से किया जाता है। जन्माभिषेक देखकर इंद्र, इंद्राणी और सभी देवियां बहुत खुश हो जाते हैं, झूम झूम कर भक्ति भाव से नाचते हैं और अच्छे अच्छे स्तोत्र गाते हैं और ये सब कल्याणक को सेलिब्रेट करके अपनी लाइफ को बहुत वर्थवाइल मानते हैं। सब सेलिब्रेशंस पूरे होने के बाद बेबी को सुंदर सुंदर वस्त्र मतलब क्लोथ्स, आभूषण मतलब ज्वेलरी से ड्रेसअप करके वापस महल में माता के पास लाया जाता है। उसके बाद सौधर्म इंद्र खुशी से झूम झूम कर एक स्पेशल नृत्य नाटिका करते हैं, मतलब एक स्पेशल म्यूजिकल प्ले जिसका नाम होता है आनंदोद्यत नाटिका। महाराज नाभिराय भी खुश होकर बहुत उत्सव मनाते हैं। सौधर्म इंद्र बालक के अंगूठे में मतलब उनके थंब में एक स्पेशल नेक्टर छोड़ के जाते हैं जिसे अमृत कहते हैं। तो whenever तीर्थंकर बालक feels hungry, he can get nectar from his thumb. He doesn't need to drink milk or eat anything. सौधर्म इंद्र तीर्थंकर बालक की सेवा में उनकी हेल्प के लिए स्वर्ग के देव देवियों को यंग बॉयज और गर्ल्स के फॉर्म में भगवान के महल में छोड़ के जाते हैं। श्रीमद्महंता शिवतीर्थंता सुगुणनंता भगवंता भवरमणानंता सौख्यानंता दातारं तारणमंता। आनंद अंतर में न समाए आंगन मंगल बेलाई। आनंद अंतर में न समाए आंगन मंगल बेलाई। सुर बालाए कलश सजाए स्वर गुने भी निधियां पाए। मुक्ति मार्ग राज खुलारे अनुभव अवसर ये आया रे। धन्य हुए नर नारी आज दर्शन से तीन भुवन के नाथ पधारे। गूंजे मंगल जय जयकारे आओ मुक्ति स्वयं पुकारे। महा उत्सव में भुवन के नाथ पधारे गूंजे मंगल जय जय
स्वर्ग धरा पर लाए, शजरत्नों के चौक पुराए। हो सुरपति स्वर्ग धरा पर लाए, शजरत्नों के चौक पुराए। रवि शशि कल्प कांति शर्माए, सौम्य शांति प्रभु जगने पाए। ज्ञानानंद बलने में झूले, भविजन देख देख हर्षाए। धन्य धन्य हुए नर नारी प्रभु दर्शन से। दीन भुवन के नाथ पधारे, गूंजे मंगल जय जयकारे। आओ मुक्ति स्वयं पुकारे, महावत्सव में। दीन भुवन के नाथ पधारे, गूंजे मंगल जय जयकारे। आओ मुक्ति स्वयं पुकारे, महावत्सव में। हाँ प्रभु स्वयं भगवान बनेंगे, भविजन का कल्याण करेंगे। हाँ प्रभु स्वयं भगवान बनेंगे, भविजन का कल्याण करेंगे। समवसरण में सुशोभित होंगे, चिदायतन में विराजित होंगे। संकित मेरे मन भाया रे, मंगल अवसर ये आया रे। धन्य धन्य हुए नर नारी आज दर्शन से। तीन भुवन के नाथ पधारे, गूंजे मंगल जय जयकारे। आओ मुक्ति स्वयं पुकारे, महावत्सव में। तीन भुवन के नाथ पधारे, गूंजे मंगल जय जयकारे। आओ मुक्ति स्वयं पुकारे, महावत्सव में। तीन भुवन के नाथ पधारे, गूंजे मंगल जय जयकारे। आओ मुक्ति स्वयं पुकारे, महावत्सव में।
आज मैं धन्य हुई, धन्य हुई, धन्य हुई, धन्य हुई, धन्य हुई। मेरा रोम रोम रोमांच आज मैं धन्य हुई। हुआ तीर्थंकर अवतार आज मैं धन्य हुई। स्वर्गपुरी से जय कर स्वामी, भरत क्षेत्र में नाथ पधारे। गर्भ समय से मोक्ष समय तक भव्य जनों के भाग्य संवारे। ये सारे जगत के प्राण आज मैं धन्य हुई। समकित में निमित्त महान आज मैं धन्य हुई। धन्य हुई यह स्त्री पर्याय, समकित से तन मन हर्षाए। मोह तिमिर का अंत हुआ अब, सम्यक श्रद्धा और में समाए। मेरा अनंत गुणों का धाम आज मैं धन्य हुई। अब मोह से मिला विश्राम आज मैं धन्य हुई। एक अवस्था अंतिम होगी, भव भव से फिर मुक्ति मिलेगी। जन्म मरण के बंधन छूटे, फिर मैं जन्म कभी न धरूंगी। अब सिद्ध शिला ही धाम आज मैं धन्य हुई। अब भव पर पूर्ण विराम आज मैं धन्य हुई। धन्य हुई, धन्य हुई, धन्य हुई, धन्य हुई। मेरा रोम रोम रोमांच आज मैं धन्य हुई। हुआ तीर्थंकर अवतार आज मैं धन्य हुई। अब तो आपको सबको पता है ना तीर्थंकर भगवान के 5 स्पेशल सेलिब्रेशंस। अच्छा, आप उनके नाम बताइए। गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक, तप कल्याणक, ज्ञान कल्याणक और मोक्ष कल्याणक। हमने सबने पिछले वीडियो में देखा था ना अमेजिंग ग्रैंड सेलिब्रेशन ऑफ गर्भ कल्याणक, जब तीर्थंकर भगवान की सोल स्वर्ग से माता के गर्भ में आती है। और फिर जन्म कल्याणक सेलिब्रेशन, जब तीर्थंकर भगवान का बर्थ होता है। आज हम आपको बताएंगे कि जब ऋषभ देव बालक ग्रोन अप हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, तो क्या होता है। तो बालक ऋषभ देव बड़े होकर अयोध्या के राजा बन जाते हैं और बहुत अच्छी तरह से अपनी प्रजा की सेवा करते हैं। तो एक दिन वो अपने सभी मिनिस्टर्स के साथ बैठे हुए थे, तब नीलांजना नाम की एक बहुत ही ब्यूटीफुल स्वर्ग की अप्सरा राजसभा में नृत्य कर रही थी। एंड ड्यूरिंग द डांस उसकी डेथ हो जाती है। स्टिल नीलांजना वहाँ डांस करती रहती है। पता है कैसे? सौधर्म इंद्र एक नीलांजना जैसी दूसरी अप्सरा को वहाँ भेज देते हैं। किसी को भी इस बात का पता नहीं लगा कि नीलांजना की डेथ हो गई, बट ऋषभ देव को ये पता पड़ जाता है। पता है क्यों? आपको बताया था ना कि तीर्थंकर को बचपन से ही 3 टाइप्स ऑफ नॉलेज मतलब ज्ञान होते हैं, तो उनको अपने अवधि ज्ञान से इन सब का पता चल जाता है। तो ये सब देखकर ऋषभ देव को सारा वर्ल्ड अनस्टेबल लगने लगता है।
वो सोचते हैं कि हम सबको तो एक दिन डेथ होने वाली है, जिसका भी बर्थ हुआ है वो भी एक दिन ख़त्म हो जाएगा, तो क्यों ना मैं अपनी सोल के लिए कुछ अच्छा काम करूं। और उन्हें इस संसार से वैराग्य हो जाता है। ये वैराग्य क्या होता है? वैराग्य का मतलब उनका इस वर्ल्ड की एक्टिविटीज, सभी कामों में इंटरेस्ट खत्म हो जाता है और अपनी आत्मा को प्योर करने के लिए, मतलब भगवान बनने के लिए उनका मन बन जाता है। जब उनके माइंड में ये चल रहा था तो उनके मन की बातें सब देवों को पता पड़ जाती हैं। पता है कैसे? 5th नंबर का एक स्वर्ग है, स्पेशल स्वर्ग, उसमें स्पेशल देव रहते हैं। उनका नाम मालूम है? उनका नाम है लोकांतिक देव। जैसे ही ऋषभ देव को वैराग्य होता है, लोकांतिक देवों के सिंहासन कंपन्न हो जाते हैं, वाइब्रेट करने लगते हैं। फिर लोकांतिक देव स्वर्ग से उनके पास आ जाते हैं और ऋषभ देव का वैराग्य और स्ट्रांग हो जाता है। स्वर्ग से बाकी सभी देव भी आ जाते हैं। वो आकर पता है क्या करते हैं? वो ऋषभ देव का क्षीर सागर से जल से अभिषेक करते हैं। क्षीर सागर तो आप जानते हैं ना, जब तीर्थंकर बेबी का जन्म अभिषेक किया था 1000 कलश से। मीनवाइल ऋषभ देव ने भी अपने एल्डर सन भरत को किंग और बाहुबली को प्रिंस बना दिया था। Everyone was so happy and excited. On one side, भरत का राज्याभिषेक का सेलिब्रेशन and another side ऋषभ देव का तप कल्याणक का सेलिब्रेशन। ऋषभ देव अपने पेरेंट्स महाराजा नाभिराय और महारानी मरुदेवी से परमिशन लेकर के पालकी में सवार होते हैं। देखा आपने बच्चों, ऋषभ देव अयोध्या के किंग थे, स्टिल ही वॉज रेस्पेक्टिंग हिज पेरेंट्स ऑल द टाइम, सो बिफोर गोइंग एनीवेयर ही ऑलवेज आस्क्ड देम। बच्चों, हम कोई सा भी काम करें, हमें हमेशा पेरेंट्स से पूछ कर ही करना चाहिए। उनसे बड़ा हमारा कोई भी वेल विशर नहीं होता। तो ऋषभ देव को की पालकी को बहुत अच्छे से डेकोरेट किया विथ कलरफुल फ्लैग्स, प्रेशियस स्टोन्स की स्मॉल बेल्स, छोटी छोटी घंटियाँ, जिससे उसकी जो भी आवाज़ सुने वो इस सेलिब्रेशन में इन्वॉल्व हो जाए। ऋषभ देव की इस पालकी को उठाने के लिए भी अलग अलग पर्सन्स इन्वॉल्व हुए। पहले 7 स्टेप्स राजा लेकर चले, उसके बाद अगले 7 स्टेप्स स्काई में फ्लाई करने वाले विद्याधर राजाओं ने उनकी पालकी को बढ़ाया और उसके बाद में फिर देवता लोगों ने पालकी को लिया। एवरीवन वॉज फीलिंग सो ब्लेस्ड एंड लकी। आपने कभी मंदिर के फंक्शन में किसी को भक्ति भाव से भगवान की पालकी उठाते हुए देखा है? वैसे ही भक्ति के भाव यहाँ पर सबके हो रहे थे। अगली बार मंदिर में भगवान की पालकी जब सजेगी तो आप भी उठाओगे ना पालकी? ओके, तो सभी देव और उनके किंग इंद्र जय 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 बोल रहे थे और कल्प वृक्षों से सुंदर सुंदर फ्लावर्स उनके ऊपर डाल रहे थे, तो ऐसा लग रहा था कि फूलों की बारिश हो रही हो। इन द मिडल ऑफ फॉरेस्ट देयर वाज अ रॉक। ये चंद्रकांत मणि की शिला थी। ऋषभ देव पालकी से उतरकर उस शिला पर जाकर बैठ गए। उन्होंने सभी देव देवियों और फैमिली मेंबर्स को स्माइलिंग फेस से देखा, फिर सभी ज्वेलरी और क्लोथ्स निकाल दिए। अपने हाथों से अपने हेयर उखाड़े, मतलब केश लॉन्च किया। बच्चों, आप जानते हो केश लॉन्च कैसे करते हैं? आपने देखा है किसी मुनि महाराज को केश लॉन्च करते हुए? वो अपने हेयर को सीजर से नहीं कट करते, वो अपने हाथों से ही बालों को उखाड़ कर तोड़ देते हैं। तो ऋषभ देव अपना केश लॉन्च करके ईस्ट डायरेक्शन में फेस करके खड़े हो जाते हैं और सिद्ध परमेष्ठी को नमन करते हुए सभी चीज़ों को गिव अप कर देते हैं। फिर उन्हें 4th ज्ञान मनः प्रिय ज्ञान भी हो जाता है। 3 ज्ञान के नाम तो आपको बताए थे ना हमने पहले, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, और ये नेक्स्ट ज्ञान है मनः प्रिय ज्ञान। पता है क्या होता है ये? इसमें दूसरे के मन में क्या चल रहा है ये भी पता पड़ जाता है ना? कितना स्पेशल ज्ञान! ये ज्ञान केवल मुनि महाराज को ही हो पाता है। तो फॉरेस्ट में ऋषभ देव बहुत टफ तपस्या करने लग गए। वो बहुत दिनों तक स्टैंडिंग पोस्चर में रहते, बहुत मेडिटेशन करते और अपनी आत्मा के ध्यान में आनंदित रहते। इस तरह से बहुत दिनों तक तपस्या और साधना से पता है उन्होंने क्या अचीव किया? पता है?
ये बताएंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। जय जिनेंद्र। नीलांजना देवांगना, नीलांजना देवांगना, जन्म जयंती पर प्रभुवर की आई बनकर नृत्यांगना। नीलांजना देवांगना। जय वृषभेश्वर, जय तीर्थेश्वर, जय आदिश्वर, प्रथम जिनेश्वर। जय वृषभेश्वर, जय तीर्थेश्वर, जय आदिश्वर, प्रथम जिनेश्वर। मंगल जिन है, मंगल दिन है, मंगल गाए मंगल मना। नीलांजना देवांगना। संगम नश्वर, वैभव नश्वर, यौवन नश्वर, उत्सव नश्वर। संगम नश्वर, वैभव नश्वर, यौवन नश्वर, उत्सव नश्वर। जब देवी का विलय हो गया, आई नूतन नीलांजना। नीलांजना देवांगना। तत्क्षण विनिमय, अद्भुत अभिनय, नर्तन गुणमय, दर्शक तन्मय। तत्क्षण विनिमय, अद्भुत अभिनय, नर्तन गुणमय, दर्शक तन्मय। सुरपति जिनपति दोनों जाने, परिवर्तन की विडंबना। नीलांजना देवांगना। प्रज्ञा जागी, निद्रा भागी, निज धन लागी, लक्ष्मी त्यागी। तब वैरागी प्रभु आदिश्वर, हुए तपस्वी महामना।
रंग लाग्यो तारो रंग लाग्यो आतम तारो रंग लाग्यो आतम तारो रंग लाग्यो तारी श्रद्धा करवानो मारो भाव जाग्यो तारी श्रद्धा करवानो मारो भाव जाग्यो रंग लाग्यो चेतन तारो रंग लाग्यो चेतन तारो रंग लाग्यो समकित केरी बीज रे रंग चेतन नो ए तो लावी सुख अपार रे रंग चेतन नो एणे खोला मोक्षना द्वार रे एणे कीधा भवना अंत रे रंग चेतन नो रंग चेतन नो रंग चेतन नो रंग लाग्यो आतम तारो रंग लाग्यो आतम तारो रंग लाग्यो आज देखो आतम राम रे रंग चेतन नो पछी थाशे मुनिपद सार रे रंग चेतन नो आज देखो आतम राम रे रंग चेतन नो पछी थाशे मुनिपद सार रे रंग चेतन नो अमे लेशु केवल ज्ञान रे बनी जाशु सिद्ध भगवंत रे रंग चेतन नो रंग चेतन नो रंग चेतन नो रंग चेतन नो रंग लाग्यो तारो रंग लाग्यो आतम तारो रंग लाग्यो आतम तारो रंग लाग्यो आतम तारो रंग लाग्यो आतम तारो रंग लाग्यो अभी तक हमने जाना तीर्थंकर भगवान के 3 कल्याणकों के बारे में। पहला, जब भगवान की सोल, उनका जीव स्वर्ग से माता के गर्भ में आता है तो देव मनाते हैं गर्भ कल्याणक। और दूसरा, जब भगवान का बर्थ हो जाता है तब देवलोग मनाते हैं उनका जन्म कल्याणक। और बड़े होकर भगवान जब प्रिंस बन जाते हैं और उसके बाद जब वो मुनि बन जाते हैं तब देवलोग मनाते हैं उनका तप कल्याणक। तो चलो अब हम जानेंगे कि मुनि बनकर उन्होंने क्या किया और उनकी लाइफ में नेक्स्ट 2 कल्याणक कौन कौन से हुए। ये नेक्स्ट कल्याणक था ज्ञान कल्याणक, जब उन्हें मिल गई इनफाइनाइट नॉलेज, मतलब केवल ज्ञान। इट इज अ सुपर नॉलेज जिससे उनको यूनिवर्स की पूरी नॉलेज अपने आप हो जाती है। तो मुनि बनकर भगवान आदिनाथ ने बहुत तपस्या की,
बहुत डीप जंगल में जाकर वो ध्यान करते थे। बताओ किस लिए ध्यान करते थे? वो ध्यान करते थे अपनी आत्मा, अपनी सोल की प्योरिटी के लिए। वो बहुत दिनों के बाद आहार के लिए नगर में आते थे, और आहार मतलब फूड जो खाते थे ना, वो भी रूखा सूखा और थोड़ा सा ही लेते थे। लेकिन ऐसा क्यों करते थे? वो पेट भरकर क्यों नहीं खाना खाते थे? वो ऐसा करते थे तप करने के लिए। तप करने से अपने कर्मों का नाश होता है, अपने कर्मों की निर्जरा होती है। उन्होंने अपनी सभी तरह की डिजायर्स को जीत लिया था। वो तो आत्मा के ब्लिस में रहते थे। कभी तो वो हॉट समर्स में हिल्स के ऊपर बैठकर ध्यान करते थे, और कभी चिली विंटर नाइट्स में रिवर के किनारे पे योगासन लगाकर ध्यान करते थे। वहाँ ध्यान करते करते उनकी सोल की प्योरिटी धीरे धीरे बढ़ती ही चली गई, और धीरे धीरे उनके कर्मों का नाश होने लगा। मतलब उनके कर्म डेमोलिश होने लगे। और जब उन्होंने एक स्पेशल एंड प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ ध्यान किया, जिसका नाम था शुक्ल ध्यान। क्या नाम था? शुक्ल ध्यान। जब उन्होंने इस प्योरेस्ट ध्यान से अपने कर्मों को खत्म कर दिया, तब उनको क्या मिल गया? तब उन्हें मिला केवल ज्ञान, द ग्रैंड इनफाइनाइट नॉलेज, टू नो ईच एंड एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स। और जब तीर्थंकर भगवान को केवल ज्ञान हो जाता है, तो वो बन जाते हैं अरिहंत परमेष्ठी। तो वो अरिहंत बन गए, जिन्हें अपन नमो अरिहंताणम बोलकर रोज याद करते हैं ना। हाँ, तो जैसे ही इंद्र को पता चला कि भगवान को केवल ज्ञान हुआ है, तो वो अपनी पूरी फैमिली के साथ भगवान की पूजा करने के लिए पुरीम ताल नामक सिटी में आया। पता है, इंद्र के आने से पहले ही धनपति कुबेर ने, मतलब जो कुबेर नाम के सुपर रिच देव होते हैं ना, उन्होंने एक बहुत ही सुंदर और ह्यूज सेटअप बनाया। बताओ उस कॉन्ग्रेगेशन या उस सभा को क्या कहते हैं जो कुबेर ने बनाई थी? उसे कहते हैं समोशरण। वो समोशरण बनता है एक बहुत ह्यूज नीलमणि, मतलब प्रेशियस ब्लू जेमस्टोन्स वाले ह्यूज रॉक पर। It's a big and very beautiful setup that has about 20,000 steps. वहाँ पर एंट्रेंस पर सुंदर सुंदर लोटस फ्लावर्स वाली परिखा, मतलब वाटर बॉडीज बनी होती हैं। कहीं कहीं नाट्यशालाएं भी बनी होती हैं, मतलब थिएटर्स बने होते हैं, जहाँ पर देव देवियाँ भगवान की भक्ति में नृत्य कर रहे होते हैं। They dance in happiness and gratitude to celebrate the Keval Gyan of Tirthankar Bhagwan. There are 12 different areas for everyone to sit, जिन्हें कहते हैं 12 सभाएं। इनमें देव देवियाँ, humans, animals, even birds भी आकर आराम से बैठ सकते हैं। और एक मजे की बात है, पता है कि सब भगवान के आसपास बैठते तो एक सर्कल में है, लेकिन भगवान जी का फेस चारों तरफ से एक जैसा दिखता है सबको। उनको लगता है कि जैसे भगवान बिल्कुल हमारे सामने बैठे हैं। अच्छा, ये बात बताओ कि भगवान क्या अपने सिंहासन के एकदम ऊपर बैठते हैं, जैसे हम अपनी चेयर पे बैठ जाते हैं? नहीं, भगवान जी सिंहासन से 4 अंगुली ऊपर स्पेस में विराजमान रहते हैं। वो किसी भी चीज को टच नहीं करते, कोई भी चीज उन्हें टच नहीं कर पाती। भगवान के बिल्कुल पीछे रहता है एक बहुत सुंदर ट्री, जिसे कहते हैं अशोक वृक्ष, जिसे जस्ट देख लेने से ही इतना अच्छा फील होने लगता है कि सारा शोक, मतलब सारी सैडनेस दूर हो जाती है। भगवान के हेड के ठीक पीछे होता है एक बहुत ग्लोइंग ब्राइट सा एरिया,
जिसे कहते हैं भामंडल। इट्स लाइक एन ऑरा अराउंड भगवान्स हेड। वहाँ देवलोग बहुत ही अच्छी अच्छी ट्यून्स में, मेलोडीज में और दुंदुभी बजा बजा कर भगवान के केवल ज्ञान को सेलिब्रेट करते हैं। बहुत मंद मंद, मतलब बहुत सूदिंग ब्रीज चलती रहती है और देवलोग स्काई से बहुत सुंदर और स्पेशल कल्प वृक्षों के खुशबू वाले फ्लावर्स शावर करते हैं। भगवान के आसपास 12 किलोमीटर्स तक कोई भी भूखा नहीं रहता, कोई दुखी नहीं रहता, सब अच्छा अच्छा होता है। जीव सब आपस में फ्रेंडली हो जाते हैं। वहाँ जाके डेफ एंड डम सब ठीक हो जाते हैं। अच्छा बताओ, ये दिव्य ध्वनि या भगवान का उपदेश किस लैंग्वेज में होता है ना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अरे ये स्पेशल उपदेश किसी स्पेसिफिक लैंग्वेज में नहीं होता, लेकिन अपने आप सबको अपनी अपनी लैंग्वेज में समझ आ जाता है। बर्ड्स उसे अपनी लैंग्वेज में समझ लेते हैं, एनिमल्स अपनी लैंग्वेज में, ह्यूमंस अपनी में और देवलोग अपनी लैंग्वेज में। Isn't it amazing? तो अब ऋषभ देव विहार करते हुए और सभी जीवों को उपदेश देते हुए कहाँ पहुँचे? कैलाश नाम के माउंटेन पे, एक ऊंचे पहाड़ पर पहुँचे। वहाँ जाकर उन्होंने योग निरोध करना शुरू किया। मतलब he sat there silently without any movement। अब वो समोशरण में नहीं बैठते थे और ना ही कोई उपदेश देते थे, जस्ट एक माउंटेन की तरह स्टेबल हो गए थे। कितने दिनों तक उन्होंने योग निरोध किया? 13 डेज तक। और 13 डेज के बाद आया वो स्पेशल डे जिस दिन क्या हुआ? उस दिन चतुर्दशी थी। उस दिन भगवान ने वो स्पेशल प्योरेस्ट शुक्ल ध्यान किया और अपनी आत्मा को एकदम प्योर बना लिया। उनकी आत्मा अपनी बॉडी को छोड़कर कहाँ चली गई? सीधे सिद्धशिला पर चली गई। भगवान की बॉडी बिल्कुल डिसअपीयर हो गई। अर्थ पर सिर्फ हेयर और नेल्स ही रह गए। तो भगवान को क्या हो गया था? भगवान की आत्मा को, उनकी सोल को निर्वाण यानी कि मोक्ष मिल गया था। उस टाइम स्वर्ग से जय हो करते हुए सभी देव आए। उन्होंने माया से, स्पेशल पावर से भगवान की डुप्लीकेट बॉडी बनाई और एक स्पेशल फायर प्लेस में, अग्नि कुंड में रिस्पेक्ट से उस बॉडी को विराजमान किया। और आपको पता है एक स्पेशल देव होते हैं अग्नि कुमार। अग्नि मीन्स फायर। तो वो अग्नि कुमार देव के मुकुट में, मतलब उनके क्राउन में से फायर निकलता है। अग्नि कुमार देव ने अपने मुकुट से उस फायर प्लेस को टच किया और लाइट अप कर दिया। उसमें आग जला दी, अग्नि जला दी। तो भगवान की बॉडी का संस्कार किया। जब अग्नि धीरे धीरे शांत हो गई तो वहाँ क्या बचा? सभी देव भगवान के निर्वाण के सेलिब्रेशंस कर रहे थे, क्योंकि अब भगवान की सोल कभी भी वापस इस वर्ल्ड में नहीं आएगी, किसी भी गति में नहीं जाएगी। भगवान की सोल तो एकदम फ्री होकर सिद्धशिला पर चली गई है। वहाँ हमेशा ब्लिस बना रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो ये था निर्वाण कल्याणक। तो आज हमने जाना ग्रैंड सेलिब्रेशन। अब हम जान चुके हैं पांचों कल्याणकों के बारे में। आप इन पांचों कल्याणक को इमेजिन करो और प्रेयर करो कि हमें भी इन सेलिब्रेशंस में जाने का मौका मिले। हाँ, और पता है मंदिरों में पंचकल्याणक महोत्सव होते हैं और हमें वहाँ जाकर भी पार्टिसिपेट करना चाहिए। करेंगे ना हम ऐसा ही? जय जिनेंद्र।
ध्यानाय गुरुस्पर्शाय ध्यानसिद्धाध्वने गुरुशुभ्राय शुभरत्नाय रत्नत्रयीकारिणे शुद्धपाराय शुद्धसाराय शुद्धप्रदायिने गुरुगौरवाय मोक्षकन्दाय धीमते तेजोभानवे गुरुहेमा महासरिते गुरुज्ञानाग्नये नमः गुरुसाकारसिद्धाय गुरुपरमार्थदायिने धर्ममार्गाय मार्गभद्राय गुणगरिष्ठाय हि नमः ज्ञानमत्ताय ज्ञानयज्ञाय ज्ञानसाराय हि नमः योगसाराय योगकाराय योगचन्द्राय हि नमः गुरुदेवाय गुरुवक्त्राय गुरुचरणाय हि नमः परब्रह्माय ब्रह्मरूपाय रूपशुद्धाय हि नमः गुरुदेवाय गुरुवक्त्राय गुरुचरणाय हि नमः परब्रह्माय ब्रह्मरूपाय रूपशुद्धाय हि नमः तां दीं तदीं 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 तदिरना तां दीं तदीं 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 तदिरना तददानि तुं कृतानि तदीं 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 तदिरना तददानि तुं कृतानि तदीं 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 तदिरना तददानि तुं कृतानि तदीं 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 तदिरना नाकृतानि 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 तुं कृतानि धृतानि तुं धृतानि पावगसन धृतानि तुं धृतानि पावगसन धृतानि तुं धृतानि पावगस दित्रं दिनकुं दिनकुं सगमपनितं दीं तदीं 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 तदिरना नाकृतानि तुं कृतानि जय श्री सिद्ध तुम ही महान। जय श्री सिद्धा तुम ही महान। तुझ में हमें दिखाई देती, तुझ में हमें दिखाई देती सहज सुखों की खान। जय
तू परिचालक द्रव्य भाव मम इस लायक मोक्ष मार्ग का तू परिचालक द्रव्य भाव मम है इस लायक निज अनुभव के आश्रय से हम निज अनुभव के आश्रय से हम पावे पद निर्वाण जय हरिहंसा तुम ही महान जय श्री सिद्धा तुम ही महान In 1948, Khimjibai Shah, who was already reading Atma Dharma and engaging interested people in Swadhyay,
sowed the seed of an institutionalized Mumukshu Mandal. The formal establishment under Kenyan law of the Sri Digambar Jain Mumukshu Mandal was done on 4th June 1950. As time passed, the numbers of searching mumukshus increased, and thus in 1963, a suitable location in Ngara was purchased and the planning for a Swadhyay Hall started in earnest. On 5th January 1964, under the guidance of Pandit Devshibhai, the foundation stone for the Swadhyay Hall was ceremoniously laid. The project was completed in a short period of 8 months, and the opening ceremony was done on 30th August 1964 by the chairman at the time, Fulchanbhai Karamshi Shah. This marked the start of 7 days a week of Swadhyay, with a daily morning 1-hour discourse of the recorded pravachans of Pujya Gurudev Kanji Swami and group Swadhyay in the afternoon and evenings. A momentous event happened in 1965 with the arrival from India of a small marble Pratimaji of Mahavir Swami, which was placed in the Swadhyay Hall annex. This served as a small Jin Mandir for darshan and pujan. Over the years, mumukshus had been keenly waiting for an opportunity for Jinendra Bhagwan darshan in a full Shikharbandi Mandir, and in 1978, Raichanbhai Devan Shah laid the foundation stone for the construction of a Jin Mandir on the same site. This exciting ceremony was conducted by Pandit Lalchandbhai Modi from Rajkot and Pandit Babubhai Chunilal Mehta from Fatehpur. 2 years later, the most important part of the historical journey was completed, a grand Mahavir Swami Digambar Jin Mandir. The Panch Kalyanak Pratishtha Mahotsav, the 5-day ceremony that establishes the Jin Pratimajis in the temple for worship, was celebrated with great pomp and festivity. On 2nd January 1980, Pujya Gurudev made his first ever visit out of India to Nairobi for this event, together with 400 mumukshus from India. Pujya Gurudev stayed in Nairobi for 25 days and together with the Jin Mandir events, gave daily lectures to the Jain community in Nairobi. A truly huge wave of Adhyatmic activity took place amongst hundreds of people. These lectures have remained as the only video recorded lectures of Pujya Gurudev available. Sri Mahavir Swami Digambar Jin Mandir now houses the Pratimajis of Mahavir Bhagwan, Shantinath Bhagwan, Parshvanath Bhagwan, Neminath Bhagwan and Simandar Bhagwan. A Pratimaji of Suryakirti Bhavi Bhagwan was seated at a later date as well. It was a huge boost for so many. Over the years, 2 to 3 Pandits have come to Nairobi for Adhyatmic lectures every year, staying for a few weeks at a go. The major lecture event happens every year during Paryushan. In 1995, a further momentous event happened with the placing of a very lifelike marble statue of Pujya Gurudev in the Swadhyay Hall. The aura of the area now felt markedly different and uniquely inspiring. The regular activities of the mandir are a daily morning 1-hour lecture of Pujya Gurudev, every Sunday Samuhik Puja, other important calendar dates such as the annual Jin Mandir flag hoisting and Pujya Gurudev's birth, Pujya Mataji Champaben's birth and Samyaktva are always celebrated. Over the last 20 years, some grand Vidhans have been held in which hundreds of mumukshus and the wider Jain community has participated. Siddh Chakra Pujan, Niyam Sar, Samay Sar, Bhaktamar Stotra, Tattvart Sutra, Namokar Mantra and Yog Sar Vidhans have been held with visiting Pandits and musicians from India. It is written in the Shastras that 10,000 Kevlis are equivalent to 1 Tirthankar and 10,000 Tirthankars are equivalent to 1 Jin Pratimaji.
let our Jin Mandir be a force in the achievement of Samyak Darshan and onwards towards moksha for all. હવે આની વાત એક પર અમારી વાત બહુ ઝીણી છે, એવી વાત બહુ મોઢે કેવી ઠીક શોભે નહીં. બાકી અહીંથી અમે મરીને સ્વર્ગમાં જવાના છીએ, અહીંથી દેવ થવાના છીએ. બીજા ભાવમાં તીર્થંકરના પુત્ર તરીકેનો અવતાર છે, બીજા ભાવમાં સ્વર્ગ છે, ચોથા ભાવમાં તીર્થંકર થઈને કેવો પામીને મોક્ષ જવાનું છે. प्रभु गुण गाइए, प्रभु जी ने जोता जोता प्रभु में समाइए.